Hello students, welcome to our channel Fishery Science Education. So today we will be starting our new subject, that is anatomy and biology of finfish, and this is the part 1 of this subject. So if you are new to this channel, do subscribe to our channel, and also you can follow us on our Instagram page where we are posting many fisheries related notes and updates. And you can also join our Telegram channel where we are conducting quizzes and we are also providing our notes in PDF format. So now let's start our video. So the topic for the today's video is internal anatomy of finfish. So first of all, we will say what is finfish. So finfish, it is a finned aquatic vertebrates animal with skin covered with scale. So ये जो fishes है वो finned aquatic animals है जो वाटर में रहते हैं और उसमें फिन्स प्रेजेंट होती है और उसकी जो स्किन्स है वो स्केल से कवर होती है, उसे हम नॉर्मली फिश बोलेंगे, कोई भी फिन फिश बोलेंगे. And it lives in water and is usually oviparous. So fish होगी वो water में रहेगी और वो oviparous होगी. Oviparous means organism which lays egg. जो organism egg lay करता है उसे हम oviparous बोलते हैं. तो हम फिश किसे बोलेंगे? जिसमें फिन्स प्रेजेंट हो, उसकी स्किन पर स्केल्स हो और वो वाटर में रहता हो और वो एग ले करता हो. So now this is the diagram of typical fish. So first we will see the brain. So brain, it is a seat of mental faculties of a fish. तो brain ये हम diagram में देखते हैं, ये वाला है वो brain है. तो इट इज़ अ सीट ऑफ मेंटल फैकल्टीज, जो उसके जो मेंटल एबिलिटीज़ और जो सारे सेंसेस सब प्रेजेंट है वो यूजुअली ब्रेन में प्रेजेंट होंगे. And next is esophagus. So it is a part of the digestive tract connecting the mouth to stomach. तो esophagus हम डायग्राम में देखते हैं, ये जो हमारा पोर्शन है ये esophagus है. तो what is esophagus? So it is a पार्ट, मतलब वो हाँ एक ट्यूब टाइप होगा जो माउथ से लेकर स्टमक तक होगा, जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है, वो पार्ट हम ईसोफेगस बोलेंगे. और ईसोफेगस है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में इंक्लूड हुआ है जो माउथ पोर्शन को स्टमक से कनेक्ट करता हो. ओके. And next is dorsal aorta. So it is a vessel in the back that carries blood from the heart to the organ. तो डॉर्सल अरोटा एक वेसल है, एक वेसल है जो ब्लड कैरी करेगा फ्रॉम हार्ट टू दी अदर ऑर्गन. मतलब जो ब्लड गिल्स से प्योरीफाई ऑक्सीजनेटेड होकर ब्लड जब हार्ट में पहुंचेगा और जो ब्लड हार्ट से ऑर्गन तक जाएगा, उसमें ये डॉर्सल एरोटा हेल्प करेगी. मतलब डॉर्सल एरोटा में से ही ब्लड होगा वो हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करेगा. ओके. So next is stomach. The stomach, it is a part of digestive tract between the esophagus and the intestine. तो स्टमक एक पोर्शन होगा, ईसोफेगस के बाद जो पोर्शन आएगा उसे हम स्टमक बोलेंगे. जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ये जो हमारा पोर्शन है ये स्टमक है. तो यहाँ से माउथ से जब फूड एंटर करेगा ईसोफेगस में और ईसोफेगस में से वो जो फूड होगा वो स्टमक में जाएगा और स्टमक से फिर इंटेस्टाइन में. तो जो पोर्शन ईसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच का है उसे स्टमक बोलेंगे. ओके. सो द पोर्शन बिटवीन the esophagus, this is the esophagus and intestine. So this is the esophagus and this is the intestine. So the part between this esophagus and intestine is the stomach. So here it is the stomach. So next is air bladder. So it is a pocket in which urine collect. Okay. So in diagram you can see this is the air bladder. So air bladder is a pocket or it is a part in which urine get collected. ओके. तो एयर ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट होगा. ओके. और जो एयर ब्लैडर है वो फिश को एक बॉयंसी भी देगा. बॉयंसी मीन्स एबिलिटी टू फ्लोट ऑन वाटर. ओके. तो इस एयर ब्लैडर्स की हेल्प से जो फिश होगी वो वाटर पर फ्लोट करेगी.
So next is spinal cord. So it is a part of nervous system that connects the brain to all other parts of fish. तो spinal cord क्या होगा? तो here in diagram you can see this is the spinal cord. Okay, this is the spinal cord. So spinal cord, it is a part of a nervous system. मतलब जो nervous system का part है spinal cord, जो ब्रेन को डिफरेंट बॉडी पार्ट से कनेक्ट करेगा. मतलब जो भी नर्व्स डिफरेंट बॉडी पार्ट से पास करेगी ब्रेन तक, उसे स्पाइनल कॉर्ड बोलेंगे. मतलब जो भी नर्व इम्पल्स ब्रेन से फिश के बॉडी पार्ट्स तक जाना है या फिर फिश के बॉडी पार्ट से ब्रेन तक आना है, तो इसमें जो कनेक्शंस है वो है स्पाइनल कॉर्ड. तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से डिफरेंट बॉडी पार्ट तक कनेक्ट करेगी एक दूसरे से. एंड नेक्स्ट इज किडनी. सो किडनी, इट इज़ अ ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन. तो किडनी सिंपली जो हम ब्लड है उसको प्योरीफाई करेगी. एंड यूरिनरी ओरिफाइस, इट इज़ अ ओपनिंग फॉर एलिमिनेटिंग यूरिन. तो जहाँ से यूरिन एलिमिनेट होगा, मतलब बॉडी में से रिमूव होगा, उसे यूरिनरी ओरिफाइस बोलेंगे. And then genital orifice, so it is a opening related to genital organism. तो ये जो genital orifice है ये genital organ से related है. So in diagram you can see this is the urinary orifice and this is the genital orifice. And next is anus, it is the end of digestive tract. तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जहाँ पर एंड होगा उसे हम एनस बोलेंगे. तो ये डायग्राम में हम देखते हैं, ये जो पार्ट है ये हमारा एनस है. एंड नेक्स्ट इज गोनाड्स, इट इज़ अ हार्मोन सिक्रेटिंग सेक्सुअल ग्लैंड्स ऑफ अ फिश. तो ये गोनाड्स है वो हार्मोन सिक्रेट करेगा ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन ऑफ फिशेस. And next is intestine, it is a last part of digestive tract. तो digestive tract का जो last part होगा उसे हम intestine बोलेंगे. Then pyloric cecum, it is related to the intestine. तो यहाँ हम देखते हैं ये pyloric cecum, it is related to the intestine. And gallbladder, it is a small sac containing bile. तो जहाँ पर bile स्टोर होगा उसे हम गैल ब्लैडर बोलेंगे. ऐसा हियर इन डायग्राम यू कैन सी दिस इज द गैल ब्लैडर. एंड देन लीवर, सो इट इज़ अ बाइल प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव ग्लैंड. तो जो जहाँ से बाइल प्रोड्यूस होगा उसे हम लीवर बोलेंगे. जैसे हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज द लीवर फ्रॉम विच बाइल इज प्रोड्यूस. Then heart, it is a blood pumping organ. So heart is a organ which pumps the blood to different organs. Okay, तो जहाँ ब्लड होगा वो पंप करेगा डिफरेंट ऑर्गन से फ्रॉम द हार्ट. देन गिल्स, इट इज़ अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश. तो जो गिल्स है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है फिश का. तो हियर इन डायग्राम यू कैन सी दिस इज द गिल्स. सो फ्रॉम विच द ऑक्सीजन इज from which carbon dioxide is removed and oxygen is taken from gills. Then tooth, so it is a hard organ of a fish used to shred food. So tooth is simply the teeth which helps this fish to chew its food. Okay, तो वो अपना food को chew करेगा with the help of tooth. Then next is eye, it is a sight organ of fish. So this is the eye, so by which fish can see. Then olfactory bulb, it is a bulging part of the smell organ of smell of fish. So here this is the olfactory bulb. So due to this olfactory bulb, this fish can have a sense of smelling. तो olfactory bulb की वजह से जो ये fish है वो स्मेल को सेंस कर सकता है. ओके, सो ये सारे ऑर्गन्स थे फिश के, इंटरनल ऑर्गन्स थे फिश के. तो पहले हमने देखा कि ब्रेन जो कि एक मेंटल फैकल्टी है फिश का. देन हमने देखा ईसोफेगस जो कि स्टार्टिंग पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है.
देन हमने देखा कि डोर्सल एरोटा क्या है कि वो जो ब्लड है वो हार्ट से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पास करेगा, डोर्सल एरोटा। एंड देन हमने देखा स्टमक जो कि डाइजेस्टिव पार्ट है एंड वो इसोफेगस और इंटेस्टाइन के बीच का जो पार्ट है उसे स्टमक बोला है। एंड देयर एयर ब्लैडर देखा जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है और एयर ब्लैडर की वजह से ये जो फिश है वो वाटर पे फ्लोट करती है। देन हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो ब्रेन और अदर पार्ट्स ऑफ फिश को कनेक्ट करता है एक दूसरे से। देन हमने किडनी के बारे में देखा जो कि ब्लड प्योरीफाइंग ऑर्गन है जिससे ब्लड प्योरीफाई होता है। देन हमने देखा यूरिनरी ओरिफाइस जो कि जहाँ से यूरिन एलिमिनेट होता है फिश के बॉडी में से। देन हमने देखा जेनिटल ओरिफाइस जो कि जेनिटल ऑर्गन है इन फिश जो रिप्रोडक्शन के टाइम यूज होता है। एंड देन हमने देखा एनस विच इज द एंड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खत्म होता है वो एनस है। देन हमने गोनाड्स के बारे में देखा विच इज हार्मोन सिक्रेटरिंग ऑर्गन जिससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एंड देन हमने इंटेस्टाइन के बारे में देखा जो लास्ट पोर्शन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। Then we have seen about pyloric cecum which is related to intestine. Then हमने गैल ब्लैडर के बारे में देखा जिसमें बाइल स्टोर हुआ है। देन हमने लीवर के बारे में देखा जिसमें से बाइल प्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो जो बाइल जूस है वो प्रोड्यूस लीवर में से हुआ है बट देन वो स्टोर होगा गैल ब्लैडर में। देन हमने हार्ट के बारे में देखा जो कि पंपिंग ऑर्गन है ब्लड का, सो इट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन। देन हमने गिल्स के बारे में देखा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है फिश में। देन हमने टूथ देखा जो कि हम सिंपल लैंग्वेज में टीथ बोलते हैं जो फिश को अपना फूड कैप्चर करने के लिए यूज होता है। देन हमने आइस देखी विच इज दी साइट ऑफ फिश, जिससे फिश देखती है वो आइस। देन ऑल्फैक्टरी बल्ब जिससे जो फिश है वो जो स्मेल है उसे सेंस कर सकती है। सो ये सारे थे फिश के इंटरनल पार्ट्स। Okay, so this is the end of our video. Thank you so much. Happy learning.